سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ میری ہر نیو اپڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو چلے سامعین، ہم شروع کرتے ہیں افشا ناول کی اگلی ایپیسوڈ۔ افشا کے والد قاسم صاحب نے بات جاری کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، ہمیں عمران سے کوئی شکایت نہیں، ہم اسے اپنے بیٹے کی طرح مانتے ہیں، مگر افشا نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے، ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ عمران کے والد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں قاسم بھائی، مگر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ رشتہ کہیں صرف باتوں کی حد تک محدود نہ رہ جائے، دونوں خاندانوں کی عزت اور رشتے کی وقت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ماحول میں گہری خاموشی چھا گئی۔ زبیدہ بیگم نے نرمی سے بات کرتے ہوئے کہا، ہم افشا کے فیصلے کی قدر کرتے ہیں، مگر کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر یہ بات زیادہ لمبی کھنچ گئی تو لوگوں کی باتیں سننے میں کس حد تک مشکل ہوگی؟ افشا کے والد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم نے اس بارے میں سوچا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ افشا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے، ہمیں بس اتنی مہلت درکار ہے کہ وہ اپنے خواب پورے کر سکے۔ رات کو جب افشا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ کیا وہ واقعی صحیح کر رہی ہے؟ کیا وہ اپنے والدین کی ضرورت اعتماد کو مجروح تو نہیں کر رہی؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل کی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے صحیح راستہ دکھا۔ اس سے یاد آیا کہ جب وہ چھوٹی تھی اس نے ہمیشہ اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب جب بات اس کی زندگی اور مستقبل کی تھی تو وہ اپنے دل کی بات سننا چاہتی تھی کہ عمران کے ساتھ رہ کر وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے گی یا پھر شادی کے بعد وہ اپنی تعلیم اور خوابوں کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ دوسری طرف عمران کی والدہ فریدہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے عمران کے والد سے کہا، میں نہیں چاہتی یہ رشتہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے، افشا بہت اچھی لڑکی ہے، مگر اگر وہ اس کے والدین شادی کو بار بار مؤخر کرتے رہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ عمران کے والد نے جواب دیا، فریدہ، ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہوگا، اگر عمران اور افشا ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں تو ہمیں ان کے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا، ہمیں بس صبر کرنا ہوگا اور دعا کرنی ہوگی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ عمران بھی صورتحال میں بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے افشا سے دوبارہ ملنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ دونوں کیفے میں ملے تو عمران کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ افشا، کیا تم واقعی اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار ہو؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عمران کی آنکھوں میں دیکھ کر افشا نے جواب دیا، ہاں عمران، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں، مگر میں اپنی شناخت کو کھونا نہیں چاہتی، میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں اور خود کو ثابت کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ کھڑے رہو گے؟ عمران نے افشا کا ہاتھ تھام کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مگر ہمیں اپنے والدین کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ چند دن بعد افشا کے والدین نے عمران کے والدین کو فون کر کے دوبارہ ملاقات کی درخواست کی۔ اس بار انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ افشا کی تعلیم مکمل ہونے تک رشتہ طے کر دیا جائے گا تاکہ دونوں خاندانوں کو تسلی ہو جائے۔ ملاقات کے دوران قاسم صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ افشا کی تعلیم مکمل ہونے تک منگنی کی رسم کر لی جائے، اس سے نہ صرف رشتہ طے ہو جائے گا بلکہ خاندانوں کے درمیان اعتماد بھی بحال رہے گا۔ عمران کے والد نے خوشی سے تجویز کو قبول کر لیا، یہ بہت اچھا خیال ہے قاسم بھائی، اس سے دونوں خاندانوں کو سکون ملے گا اور افشا بھی اپنی تعلیم پر توجہ دے سکے گی۔ منگنی کی تاریخ طے کر دی گئی، دونوں خاندان خوشی خوشی تیاری کرنے لگے۔ افشا کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، اس نے ایک نئے جوش کے ساتھ اپنی تعلیم کو مزید سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ صرف محبت کا نہیں بلکہ اعتماد اور حمایت کا بھی ہے۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب افشا اور عمران کی منگنی کی رسم ادا ہوئی۔ دونوں خاندانوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ عمران اور افشا نے ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائی اور یوں ان کی محبت اور اعتماد کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ مگر کیا واقعی یہ رشتہ اب مزید مشکلات سے بچ سکے گا؟ کیا افشا اور عمران اپنے خوابوں کو ساتھ لے کر چل سکیں گے یا پھر زندگی ان کے سامنے ایک نیا امتحان لے کر؟ افشا اور عمران کی منگنی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رشتے کی مضبوطی کا جشن منا رہے تھے۔ افشا کی تعلیم بھی زور و شور سے جاری تھی اور عمران بھی اپنے والدین کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ لیکن منگنی کے بعد بھی افشا کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا وہ اس کے لیے ایک نیا امتحان تھا۔ افشا نے جب منگنی کے بعد یونیورسٹی جانا شروع کیا تو وہاں کے کچھ دوستوں نے اس کے بدلتے ہوئے حالات کو محسوس کیا۔ اس کے قریبی دوستوں نے سوالات شروع کر دیے، افشا، تو منگنی کے بعد اتنی سنجیدہ کیوں ہو؟
पहले तो तुम हमेशा खुश रहती थी। अफशा मुस्कुरा कर जवाब देती, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो दे रही हूँ। मगर हकीकत ये थी कि मंगने के बाद इस पर दबाव बढ़ गया था। जुबैदा बेगम अफशा की वालिदा अब अक्सर अफशा की शादी की बातें करने लगी। वो चाहती थी कि अफशा जल्दी से अपनी तालीम मुकम्मल करे ताकि इसकी शादी की तैयारी की जा सके। एक दिन इन्होंने अफशा से कहा, बेटा तुम्हें अब जल्दी से अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई जल्दी खत्म करो ताकि तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू कर सके। अफशा ने जवाब दिया, अम्मी अभी तो मेरी तालीम में 2 साल बाकी है, मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ। जुबैदा बेगम ने संजीदगी से कहा, बेटा इमरान के वालिदैन भी इंतजार कर रहे हैं, हमें इनका ख्याल रखना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे वालिदैन को किसी किस्म की परेशानी ना हो। अफशा के दिल में ये बातें सुनकर अजीब सा बोझ महसूस हुआ। क्या इसकी तालीम वाकई इतनी अहम नहीं थी जितनी वो समझ रही थी? क्या मुआशरती दबाव उसके ख्वाबों के आगे हायल हो जाएगा? दूसरी तरफ इमरान भी अपने वालिदैन की बातें सुनकर काफी फिक्रमंद हो गया था। इसके वालिदैन ने इससे कहा, बेटा हमें अफशा के घर वालों का एहतराम है, मगर ये बात भी समझनी होगी कि रिश्ते में इतनी ताखीर मुनासिब नहीं है। अगर हम ज्यादा इंतजार करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। इमरान ने अपने वालिद को तसल्ली देते हुए कहा, अब्बा मैं अफशा के साथ हूँ और मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर इस मसले का हल निकाल लेंगे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मगर हकीकत में इमरान के दिल में भी एक इज़्तिराब था। वो चाहता था कि अफशा अपने ख्वाब पूरे करे, मगर इसे ये भी एहसास था कि खानदानी तवक्कुआत इन दोनों के रिश्ते को मुतासिर कर सकती हैं। एक दिन अफशा और इमरान ने फैसला किया कि वो एक दूसरे से मुलाकात करें और खुलकर बात करें। वो दोनों एक पुरसकून जगह पर मिले जहां वो बगैर किसी दबाव के अपने ख्यालात का इजहार कर सके। इमरान ने पहले बात शुरू की और उसने कहा, अफशा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पर बहुत ज्यादा बोझ है। क्या तुम वाकई समझती हो कि हम ये सब संभाल पाएंगे? अफशा ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, इमरान मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे वालिदैन और तुम्हारे वालिदैन के लिए इंतजार मुश्किल होता जा रहा है। कि तुम्हारे ख्याल में हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए? इमरान ने सर हिला दिया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्या हम दोनों अपने वालिदैन से बात करके इन्हें इस बात पर राजी कर सकते हैं कि हम कुछ वक्त और लें, शायद इस दौरान हम दोनों के लिए हालात बेहतर हो जाए। अफशा ने इस बात पे सर हिलाते हुए कहा, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। मैं ये भी नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी को परेशानी हो। अगले चंद दिनों में अफशा और इमरान ने अपने वालिदा से बात करने की कोशिश की। अफशा ने अपनी वालिदा को समझाया कि वो अपनी तालीम के आखिरी हिस्से में है और इसके लिए अभी शादी की बात सोचना मुमकिन नहीं। जुबैदा बेगम ने बेटी की बात सुनी, मगर इनकी आंखों में सवालात थे। बेटा मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, मगर हमें भी लोगों का सामना करना होता है। अगर ये रिश्ता ज्यादा देर तक लटक गया तो लोग बातें बनाएंगे। क्या तुम इस बात को समझती हो? अफशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी मैं जानती हूँ कि आपकी फिक्र जायज है, मगर क्या हम सिर्फ लोगों की बातों की वजह से अपने फैसले बदल सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि जब मैं इमरान की जिंदगी में कदम रखूँ तो अपनी तालीम मुकम्मल करके और एक बेहतर मुस्तकबिल के साथ दाखिल हो। सुबैदा बेगम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मगर ये बात तुम्हारे वालिदैन को भी समझाना होगी और इमरान के घर वालों को भी। दूसरी तरफ इमरान ने भी अपने वालिदैन से बात की। इसने अपने वालिद से कहा, अब्बा मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि रिश्ता जल्दी तय हो जाए, मगर अफशा की तालीम इसके लिए बहुत अहम है। अगर हम इसकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे तो इससे हमारे रिश्ते में मजबूती आएगी। हमें इसे वक्त देना होगा। इमरान के वालिद ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, बेटा मुझे तुम्हारी समझ आ रही, मगर हमें अपने खानदान की इज्जत और तवक्कुआत का भी ख्याल रखना होगा। हमें उम्मीद है कि तुम दोनों अपने फैसले पर कायम रहोगे और ये रिश्ता कामयाबी से आगे बढ़ोगे। चंद दिनों बाद दोनों खानदानों ने दोबारा मुलाकात की। इस बार माहौल में कुछ हद तक नरमी और समझ-बूझ नजर आ रही थी। कासिम साहब ने सबसे पहले बात शुरू की, हम चाहते हैं कि अफशा की तालीम मुकम्मल होने तक शादी मौखर की जाए, मगर हम रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि दोनों बच्चे अपने ख्वाब पूरे कर सकें और साथ ही इस रिश्ते को भी बरकरार रख सकें। इमरान के वालिद ने इस तजवीज़ को कबूल करते हुए कहा, यह एक अच्छा फैसला है। हम सबके लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों अपने अपने ख्वाब को पूरा करें और फिर एक नए अहद के साथ जिंदगी का रंग देखें। अफशा ने अपनी तालीम पर दोबारा से भरपूर तवज्जो देना शुरू कर दी थी, लेकिन मंगनी के बाद इस पर अब घर की जिम्मेदारियों का दबाव भी था। इसके वालिदैन अक्सर कहते, बेटा अब तुम्हें अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। इमरान के घर वालों की भी हम तुमसे बहुत तवक्कुआत हैं। हमारी पढ़ाई भी अहम है, मगर हमें ये भी देखना है कि तुम घर की जिम्मेदारियां संभालने के काबिल हो।
अफशा इस बात को समझने की कोशिश करती, मगर इसके दिल में कश्मकश जारी रहती कि आखिरकार वो कैसे इन दोनों चीजों को बैकवक्त निभा पाएगी। तालीम इसके ख्वाबों का महवर थी, मगर वालिदैन के सामने वो अपनी बात ज्यादा खुलकर कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। एक दिन जब अफशा यूनिवर्सिटी से वापस आई तो इसने इमरान को फोन किया। दोनों ने कुछ देर रस्मी बातें की, मगर फिर अफशा ने संजीदगी से कहा, इमरान, मुझे लगता है कि मैं सबको खुश नहीं रख पा रही। वालिदैन को मेरी तालीम से मसला नहीं, मगर अब वो चाहते हैं कि मैं घर की जिम्मेदारियों पर भी तवज्जो दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस किस की तवक्कुआत पूरा कर सकूं। इमरान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, अफशा, मुझे तुम्हारी ये बात समझ आ रही है, लेकिन हमें अपने वालिदैन की बातों को समझने की कोशिश भी करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो, मगर हमें साथ ही ये बात भी साबित करना होगी कि हम दोनों इस रिश्ते के लिए संजीदा हैं। अफशा ने आप भरते हुए कहा, क्या हम कभी सबको खुश रख सकेंगे? कभी तालीम का दबाव, कभी खानदान की तवक्कुआत। इमरान ने इसे हौसला देते हुए कहा, हम एक दूसरे का साथ देकर ही ये सब कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं, मगर हम मिलकर सबका सामना कर सकते हैं। तुम बस ये याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन अफशा की वालिदा को इनकी एक करीबी रिश्तेदार ने बुलाया। मुलाकात के दौरान वो रिश्तेदार कहने लगी, जुबैदा, क्या तुमने अफशा की शादी के बारे में कुछ सोचा है? लोग बातें करने लगे हैं कि इतने अरसे बाद भी तुमने कोई कदम नहीं उठाया। अगर अफशा की उम्र ज्यादा हो जाएगी तो फिर रिश्ता तय करना मुश्किल हो जाएगा। जुबैदा बेगम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए संजीदगी छा गई, मगर इन्होंने बात को हंसकर टाल दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अफशा की तालीम मुकम्मल होने वाली है, हम जल्दी शादी की तारीख तय कर देंगे। मगर ये बात जुबैदा बेगम के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। वो जानती थी कि मुआशरे की बातें इस खानदान पर बोझ बन सकती हैं, और इस बात का असर इनके और इनके शोहर के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। एक रात जब सब सो चुके थे तो जुबैदा बेगम ने अपने शोहर से कहा, कासिम, हमने अफशा की शादी के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। मैं नहीं चाहती कि लोग हमारी बेटी को बातों का निशाना बनाएं। कासिम साहब ने जवाब दिया, मगर जुबैदा, क्या तुम ये चाहती हो कि हम इसकी तालीम अधूरी छोड़कर इसे शादी के बंधन में बांध दें? वो अपने ख्वाब पूरे करना चाहती है और हमें इसका साथ देना होगा। जुबैदा बेगम ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मैं ये नहीं कह रही कि इसके ख्वाबों को तोड़ दें, मगर हमें भी इस इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अगर अफशा की उम्र बढ़ जाएगी तो रिश्ता तय करना मुश्किल हो जाएगा। कासिम साहब ने आहिस्ता से कहा, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। अगर अफशा की किस्मत में इमरान ही लिखा है तो वो इंतजार करेगा। हमें अपनी बेटी पर एतमाद करना होगा। इमरान के वालिदैन में इन दोनों अपने बेटे की शादी के बारे में सोचने लगे थे। एक दिन इमरान की वालिदा ने इसे बुलाया और कहा, इमरान, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, मगर अफशा के घर वाले हमें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में अफशा से बात करो। इमरान ने अपनी वालिदा को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं अफशा से बात करूंगा, अगर हमें इसके घर वालों को भी वक्त देना होगा। वो लोग भी अपनी बेटी के बारे में संजीदगी से सोच रहे हैं। रीता बेगम ने नाराजगी से कहा, इमरान, तुम हमेशा इन्हीं की तरफदारी करते रहो। हमें अपनी इज्जत का भी तो ख्याल रखना होगा। लोग पूछते हैं कि कब शादी करोगे, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता। इमरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मी, हमें थोड़ा सब्र करना होगा। मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर हमें अफशा के हौसले और फैसले का भी इंतजार करना होगा। चंद दिन बाद अफशा ने एक बड़ा फैसला लिया। इसने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने वालिदैन को अपनी तालीम की अहमियत के बारे में संजीदगी से समझाए। इसने अपने वालिदैन को एक जगह बुलाया और कहा, अम्मी, अब्बा, मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरी शादी के बारे में फिक्रमंद ना हो, और आप पर यह हक भी बनता है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी तब हो जब मैं अपने ख्वाब पूरे कर चुकी हूँ। क्या आप लोग मेरी बात समझ सकते हैं? कासिम साहब ने अफशा की बात को तहम्मुल से सुना और जवाब दिया, बेटा, हम तुम्हारी बात पर पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं और समझते हैं। हमने कभी तुम पर कोई चीज मुसलत नहीं की और ना ही करेंगे। बस हमें यकीन दिलाओ कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद शादी के लिए तैयार हो जाओगी। हमें यह यकीन है कि तुम्हारे फैसले में हमारे एहतराम को भी शामिल रखोगी। अफशा की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, आप पर और अम्मी पर मेरा एतमाद है। मैं कभी भी ऐसा फैसला नहीं करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आए। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। अफशा के वालिदैन ने उसे एक और मौका दिया कि वह अपनी तालीम मुकम्मल करे, मगर साथ ही साथ इन्होंने ये शर्त भी रखी कि तालीम होने के फौरन बाद वो इस शादी को कबूल करेगी और इसके लिए राजी हो जाएगी।